happy to have with us today Shri Ashok Pradhan Sir, Director, Bharati Vidya Bhavan, Delhi Kendra, under whose guidance Bhavan's Delhi Kendra and its institutions like Burman are growing in leaps and bounds. Sir is also the former Secretary to the Government of India. We also have with us the Director of the play, Miss Vanya Joshi. Miss Vanya Joshi has worked with eminent directors like Govind Nihalani, Ketan Mehta, Arun Kukreja and Umesh Bisht. She has acted in various serials on Doordarshan since 1973 like Mela Aanchal, Manziling, to name a few. She has done plays like Begum Zainabadi, Roshanara, Shadows Within and the very famous Kutte. She has represented India in countries like Algeria, Syria, Jordan, Bangkok, Egypt, North Korea and other Middle East countries as a folk artist. She is a director, thinker and a social writer dedicating her time to social issues. We also have with us Mr. Pravesh and Ms. Divya. Over to the drama club now for the much awaited performance. You'll actually get to know as to what it is. Because this is Abdullah, is our consciousness, our inner lives, as to how we kill our consciousness in every instance, in every situation, in every particular situation that we face. As to, just it's about to question ourselves, our own conscience, that what do we do when we face a particular situation? And how do we react to it? Do we go down in front of that situation? Or do we really get back to our inner conscience and do what is the truth? The synopsis is definitely given on a single page for the teachers. But it's really, when in every situation you get to question yourself as to what it is all about. Abdullah is the consciousness. When you see, I will not reveal the whole story. This is just the tip of the iceberg. And there are many decoded versions in it. So it's for the audience to do some homework and decode that version of the main scene. In every particular scene, there is a scientific reason, a particular meaning to it. So that's for you to decode and make it more interesting to read. Thank you. Abdullah Diwana. सुनो, फिर आ गए पापा। अरे ओ भाई क्या है यार, चुप भी हो जाओ। यार रखा है वही भाव 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 में। हाँ, चुप भी करो। अरे सर इन्हें चुप कराने की मीठी गोलियां खिलानी। हेलो। अरे खाओ ना, चुप हो मेरी बला से। बाप रे बाप, एकदम परेशान कर दिया। क्या बताए? अरे दफ्तरी की कोर्ट में घुस आया। लगता है कुत्ता मेज के नीचे छिप गया है। बेटा अभी लाठी निकालता हूँ। वाह बेटा, अब यहाँ छिप गया। जैसे मेरी लाठी अब तक पहुँचेगी ही नहीं। क्या मुझे पर ताव दिए बैठा है? पूछ भी हिलाता है। और आंखें तो देखे, जैसे यही जज है बड़का। साले, अभी एक डंडा मारूं कि आप संभालो। हाँ नहीं तो, अरे हाँ, अरे मिठाई खा। मिठाई पसंद नहीं? अरे बिस्किट खा ले। बिस्किट भी पसंद नहीं। अबे तो मेरी चाल लेगा क्या? भाई कोर्ट का समय शुरू होने वाला, मजाक थोड़ी है। लो संभालो डंडा। इसका साम दाम दंड भेद किसी का असर नहीं। भाई पहले जमाने में कुत्ते 1 महीना भौंका करते थे, अब 12 महीने भाऊ भाऊ भाऊ। हाँ भाई, ये अभी कहता है इतने सारे तो अखबार निकलने लगे हैं। समय शुरू रहने थोड़ा कंधा हो गया, कर लेता भाई।
बाप रे बाप, अदालत शुरू कैसे होगी? कुत्ते तो चुप ही नहीं हो रहे। बाप रे बाप, हेलो खाओ रे जिंदगी गोलियां, चुप हो। चिड़िया कहाँ गई है? राइट, इनका मतलब है इन्हें खाना दो, रहने की जगह दो, काम दो, मतलब गरीबी हटाओ। समझ लीजिए ये बीमारी वहां तक पहुंच चुकी है। सालों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो चबा चबा कर पेट में रखी है, और स्पीचें तो बड़ी गौर से सुनी है। हाँ भाई, मेरी जान लोगे क्या? अरे भाई होगा होगा, गरीबी अमीरी कोई एक दिन की बात तो नहीं है ना बेटा, ये हजारों साल पुरानी बीमारी है। कुछ ना कुछ होने में समय तो लगेगा भाई, थोड़ा धीरज और थोड़ा सब्र रखिए, एकदम की बात तो ना है। अब इसमें की भावों करने की क्या जरूरत? बस वेरी गुड। क्या हो रहा है ये? चेंज अप। देखते नहीं अदालत का समय हो गया। साहब वही तो मैं कह रहा था भाई, मेरे नाना कहते थे भगवान ने बड़े ही सोच समझकर छोटा बड़ा काला गोरा सुंदर सुंदर मैंने बनाया होगा, काफी सोचा विचारा होगा। अरे मेरे बाबा तो ऐसे पूर्व जन्म का कर्म फल मानते थे। आपके बाबा धन्यवाद के रोग ही रहे होंगे सर। अरे गरीबी अमीरी सब भगवान की तो लीला होती है। लीला नहीं सर, पप लीला। जब लोग तेजी से अमीर हो रहे हैं, लोग तेजी से गरीब हो रहे हैं। अरे देख, छोटी मछली बड़ी मछली का खुराक होती है, कुदरत का असूल है, इसमें गलत क्या है? अब्दुल्ला छोटी मछली है। देख, लोग अगर लोगों का अमीर होना है तो उन्हें तेजी से भागना पड़ेगा, तो रास्ते में अब्दुल्ला को कुचल के मरना पड़े तो मरना पड़े, इसमें क्या है? सर ऐसा बोलो, अब्दुल्ला को मरना ही होगा। देख, तू समझ नहीं रहा। इधर आ। चीन के बहुत बड़े क्रांतिकारी ने कहा है, जब गरीबी से अमीरी के लिए क्रांति होती है तो रास्ते में रुकावट डालने वाली हर छोटी मोटी चीज को कुचल के मारना पड़ता है। तो सर अब्दुल्ला के मर्डर केस में सरकार क्यों लड़ रही है? ये बता, ये सरकार किसकी है? हमारी। और इसे चलाता कौन है? हम चलाते हैं। हम चलाते हैं। अरे बेटा, सब नौटंकी है, मारता भी वही है, फिर जांच भी वही कराता है। उल्लू बनाने की नौटंकी है ये सारी। मुद्दत हुई न कहीं शादी है, न कोई अफसाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम गैरों की सियासत की बात करते हैं, मगर अपने ही गली के कुत्तों से डरते हैं। हम जानते हैं मुद्दत से चिराग जले पर जलता आया है वही अफसाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना। अरे सर, हम ही क्या करने लगे? पता नहीं यार क्या करते हैं। सर मैं बताऊं, हम अमेरिका रूस अफ्रीका हो गए। चल चल, अब बकवास बंद कर, जज आने को है। पुकार कर जल्दी से। किसे पुकारो सर? मुल्जिम को पुकार, और किसे पुकारेगा? आपने अब्दुल्ला को देखा है? मैडम आपने किसी ने अब्दुल्ला को नहीं देखा? सर सब यही कर रहे हैं। नौटंकी
पेन लेकिन आप पेन साइलेंस जज आने के लिए प्लीज जी रिमेन हाँ, साइलेंस। हमारे वकील के पास पेन तक नहीं। सर मुझे बाथरूम चले। ये भी वक्त का है नॉनसेंस। बात हो गई देख भाई, यहाँ से सीधा जा, वहाँ से भाई को सीधे जाके दाएं और घूम जा, जहाँ से तेज खुशबू आने लगे बस वही और घूम जा, जा जा। टकराना ना किसी से। पेन भी लेते आना। कमाल है, हमारे वकील के पास पेन तक नहीं। बड़ी होशियार है। इसी बहाने इंस्पेक्टर की जेब में अपनी मुट्ठी काली करेगी। हमें खामोश रहना चाहिए। जज आ रहा है। प्लीज राइज। सिट डाउन बैठो। कहिए आप लोगों को ये तकलीफ तो नहीं? हो ज्यादा बोलने से अक्सर गला खराब हो जाता है, फिर नजला जुकाम हो जाता है। आप लोग तो जानते ही हैं कॉमन कोल्ड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था? तो हुजूर आप फरमा रहे थे कि कुत्तों का भौंकना खत्म होना चाहिए। तो यही कह रहा था। ठीक है कर लिया। जी नहीं, हुजूर फरमा रहे थे कि ज्यादा बोलने से गला खराब हो जाता है। हरगिज़ नहीं, ज्यादा बोलने से गला साफ रहता है। सॉरी, मतलब आप लोगों की सब कुछ सही है, घर वगैरह सब कुछ सही है, मच्छर मक्खियाँ चूहे वगैरह इनका मानने लगे। अच्छी बात है, प्रजा सुखी है और सच बोलती है। क्योंकि शायर ने कहा है जी तुलसीदास। अरे तुलसीदास नहीं, तुलसीदास। चपरासी जी भाई जाके कुत्तों को दवा खिलाओ, कितनी देर से परेशान कर रहे थे। हुजूर इन्हें कितना रोई फिर आ जाते हैं। जाओ जाओ जी जी। खिलाओ आओ, खिलाओ। आप हाँ बहुत बढ़िया। मेंबर्स ऑफ ज्यूरी, हाजिरीन ध्यान से सुनिए और समझिए मुकदमे को, ठीक है? मतलब कि सब कुछ सही है लेकिन फिर भी यू ऑल रिप्रेजेंट फैक्ट्स, सिटीजनशिप, कॉमन सेंस, ठीक है? तो अब मुझे बताइए आप लोगों ने अब्दुल्ला की हत्या क्यों करी? मिलॉर्ड ये सब बेकसूर है। और ये सब कातिल हैं। मजिस्ट्रेट के सेशन में इन्हें अब्दुल्ला का कातिल पाया गया है। अच्छा वो तो ठीक है, मगर ये अब्दुल्ला है कौन? कौन है, क्या मतलब कौन था? हुजूर मैं बिल्कुल नहीं जानता ये अब्दुल्ला कौन था, क्या था। हुजूर मैं भी नहीं जानती अब्दुल्ला क्या है, कौन है? और ये डायरेक्टर साहब तो बहुत पुराने मुल्जिम रह चुके हैं। इन पर कत्ल और डाके का एक मशहूर केस चल चुका है। मशहूर केस सुनाओ भाई। हुजूर 23 अगस्त 1950 दिन के ठीक 1 बजे खोसला इंडस्ट्रीज के मालिकों ने अपनी ही कंपनी के 3,500 मुलाजिमों की तनख्वाह 50 करोड़ रुपए पर खुद ही डाका डाला। अच्छा आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। दोबारा से एक बार कहिए और थोड़ा नमक मिर्च कम डालिए। हुजूर खोसला इंडस्ट्रीज के मालिकों ने अपनी ही कंपनी पर डाका डाला। बहुत बढ़िया, शाबाश। हुजूर उस डाके में इनकी कंपनी के दरबान और कैशियर की जाने गई। बताओ इतना बड़ा जुल्म और गुनाह। चपरासी जी भाई कुछ लाओ कान खोदने के लिए। जी जी। हाँ ये लाओ भाई। लीजिए लीजिए। हाँ, सारी इंद्रियों में जो कान है ना, इसे कभी भी आराम नहीं मिलता। सारी इंद्रियां जब सो जाती हैं तब भी ये जागा ही रहता है। इसके फाटक हमेशा खुले रहते हैं। हुजूर सेशन कोर्ट से इन्हें सजा भी हो गई थी। कभी भी इसे आराम नहीं मिलता भाई। इसी बदमाशी, सारी बदमाशी इसी कान की है जो जितना ही खोदो महल निकलता ही रहता है। मिलॉर्ड वो मामला कब तक खत्म हो चुका है? 1 हाथ लंबी ककड़ी और 9 हाथ लंबे भी, सारी शरारत इसी कान की है। और उस खत्म पुराने केस का इस केस से क्या ताल्लुक? अरे वो मोहंदा कहाँ गया? हुजूर ये मजिस्ट्रेट का जजमेंट है। हुजूर ये मामला पॉलिटिकल है। हुजूर ये मामला। शांत रहो, आराम से, कोई बात नहीं। आप लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है, बड़ी अच्छी भाषा है? आपकी तारीफ? डायरेक्टर खोसला इंडस्ट्री। मिलके खुशी हुई। आपकी तारीफ? हुजूर सब जानते हैं खुदा के बंदों की सेवा। बंदरों की सेवा। हरिओ बंदरों की सेवा? बंदर हो या बंदर, हम तो उस ब्रह्मा की सृष्टि हैं। एको हम बहुश्याम। भैया आप तो बड़ी ऊंची चीज है। वेदांत कहता है वो वैराग्य के भाव से करो। ऑर्डर मुंह में वैराग्य। हरिओम हरिओम मोहन रखिए। हरिओम। कहाँ भेजा तूने उसे? मिलोड ये मजिस्ट्रेट का जजमेंट है। मिलॉर्ड ये मामला पॉलिटिकल है। लड़ो नहीं। अच्छा तो आप मुझे बताइए, तो आप मुझे बताइए उस दिन आपको दिन दिहाड़े अपनी जरूरत पे डाका डलवाने की क्या जरूरत पड़ी? हमने डाका नहीं डाला था। बेशक, वरना आपका पैर की क्रीज नहीं खराब हो जाती। भाई सूट तो बहुत अच्छा है आपका, कहाँ से लिया? इम्पोर्टेड है। आप दोनों इस तरह गमगीन क्यों हैं? हुजूर हमें खुदा
खुदा का डर है। हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं। हमें यकीन है खुदा चारों ओर। ऊपर क्या इशारा किया? हम खामखा आपका वक्त जाया नहीं करते। क्या बात कही है? दोबारा कहिए एक बार। अरे हुजूर, इनकी हवा किसकी है? क्या ये मुहावरा सही है? नहीं हुजूर, अब ये मामला गलत हो चुका है। अब हवा खिसकती नहीं, रुक जाया करती है। हवा तो 47 से पहले खिसकती थी। जब लोगों की भूख कम थी और जब लोगों का पेट भर जाता था। ऑर्डर ऑर्डर। भाई कम टू द पॉइंट। हुजूर, ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, बेहिसाब दौलत इनकी कोठियों में जमा है। ये बिल्कुल गलत है मिलॉर्ड। ये निहायत मेहनती लोग हैं। एक एक पैसे के लिए इन्होंने खून पसीना एक किया है। इन्होंने ही तो इस मुल्क की गरीबी हटाई है। इनसे ही तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। ये हमारे समाज की शोभा है मिलॉर्ड। ये ना होते तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, न्यू ईयर्स डे कितना सूना सूना लगता। हुजूर, इन्होंने समाज की गरीबी भी बढ़ाई है। हरिओम सर्वे भवन्तु सुखिना। ये क्या? किसे है गैस्ट्रिक ट्रबल? सारा माहौल खराब कर देते हैं लोग। दरअसल कुछ सालों से इस मुल्क का पेट ही खराब है बहुत दिनों से। भाई इसकी तारीफ मुंह की तरह है इसका। हर तरह की यही नहीं पता। सनी सनी है सन। हुजूर, ये तो सनसनीखेज चीज है। सनी बेटा अंकल को नमस्ते तो करो। ओ भाई ओ, मैं किसी का अंकल नहीं। कहाँ है हुजूर, उसका? ये मुल्जिम है। इसने पहले इसका जेंडर तो तय करो। यही पता लगती है। हमें खामखा इस चीज में फंसाया गया है। हाँ, आपका गला ठीक है? जी बिल्कुल। तो कुछ खा के सुनाइए। मैंने अपनी जिंदगी 30 रुपए महीने की एक नौकरी से शुरू करी थी। मेरे गवाह भी मौजूद है। मैंने नौकरी छोड़कर वैसे कागजों का बिजनेस खोला। खाली बोतलें भी खरीदने लगी। उस छोटी सी दुकान से फिर मैंने एक दिन ऐसा हुआ कि अब बस में चढ़ते हुए बूढ़े आदमी की पॉकेट मारी और गरीबी हटाने में जी जान से लग गए। ये गलत है। मेरे गवाह मौजूद है। मैं अभी बुला नहीं 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 चाहिए बाहर करो। हुजूर 5-5 रुपए में गवाह मिलते हैं। बड़ी बेकारी है। हुजूर, मेरे पास गरीबी दूर करने के लिए चंद तरकीबें भी हैं। मैंने एक स्कीम भी निकाली नहीं है। नहीं बंद कीजिए लेक्चर। हुजूर, मैं सच कहता हूँ। सच कहने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। अरे कहाँ पढ़े जा रहे हैं? हुजूर, दरअसल मेरा एक अपॉइंटमेंट है। मुझे गीता पे उपदेश देने जाना है। तो उपदेश यहाँ दीजिए महाप्रभु। आपसे कहा था कुछ आगे सुनाइए। हमें गाने को जाने का शौक नहीं है। तो फिर क्या शौक रखते हैं? वकील साहब इन्हें बताइए। जी गौर। और आपका? धर्मशास्त्र। और इन कॉमन सेंटर का? हुजूर LSD। शाबाश, इन कलाम जिंदाबाद। हाँ, तुम लोगों ने अब्दुल्ला की हत्या क्यों करी? मैंने सरकारी वकील शुरू करो। किसका वेट कर रहे हो? मिलोड, पुलिस की रिपोर्ट और गवाहों के बयान से ये जाहिर है कि इनकी अब्दुल्ला से दुश्मनी रह चुकी है। मेरी। जी हाँ। हरिओम हरिओम। एक बार राह चलते इन्होंने उसे थप्पड़ मारा, उसके कपड़े फाड़े, उसका मुंह नोच लिया था। हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? उनकी जब जब इनसे मुलाकात हुई है, जब जब वो उनसे मिला है, इन्होंने उनका अपमान किया है, बद्दी से बद्दी गालियां बकी ये हैं। बिल्कुल गलत है मिलॉर्ड। अब्दुल्ला नाम का ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जिनसे इनका कभी कोई ताल्लुक रहा हो। ये सरासर झूठा केस है जो इसे शरीफ और इज्जतदार लोगों के गले में खामखा लटकाया जा रहा है। मैं पूछती हूँ अदालत से, सरकार से, जूरी समाज से, ये अब्दुल्ला कौन था? भाई पुलिस उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? हुजूर, उसकी लाश ही कहाँ मिली? हमने तो अपना पूरा शहर छान डाला, सारी गलियां नालियां पूरे रात तक। चपरासी। जी जी। बदबू फैलाती भाई। प्लेट करो, प्लेट फटाफट। ठीक किधर? तो अभी काम नहीं है, तो बदबू फैलाते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, मैं सरकारी वकील। हाँ, सरकारी वकील क्या है? हुजूर, ये लोग चोर हैं। इन्होंने अब्दुल्ला का कत्ल किया है। इस बात का सबूत क्या है? सबूत है हमारे पास। अब्दुल्ला के गर्दन पर इनकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं। मिलॉर्ड, अभी इन्होंने बयान दिया कि अब्दुल्ला की लाश ही नहीं मिली। फिर इस उंगलियों के निशान का सवाल तो बिल्कुल बेबुनियाद है। बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो। मिलोड, जिन्होंने उसकी लाश देखी है, उनका बयान है कि इन्होंने अपने दोनों हाथों से उसका गला घोटा है। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा और ये खड़ा उन सब तत्व को देखता रहा। उस वक्त उसकी चीख रेडियो में सुनाई दी थी। अच्छा, रेडियो पे कौन सा प्रोग्राम आ रहा है? तो तर्जन भाई ठुमरी गा रही थी, जो कि एक नेशनल प्रोग्राम था, तभी उसकी चीख सुनाई दी। चीख सुर में थी या बेसुरी? तो दरअसल उस वक्त मैं विविध भारती सुन रहा था। हरे कृष्णा हरे राम। भाई हो, बंदा हरी कीर्तन कितनी बार बोला है? बोलिए, आपकी अब्दुल्ला से क्या दुश्मनी थी? जिसे मैं जानता नहीं, जिसे कभी देखा नहीं, इससे दुश्मनी का क्या मतलब? ठीक है, अरे मुल्जिम यही कहता है
बस बिना जाने गला घोटता है, बिना कुछ सुने पिस्तौल चलाता है। बताइए आपसे उसकी मुलाकात कब हुई? मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी तो हुई होगी। आप इतने बड़े आदमी हैं, धर्मात्मा, अभी गीता प्रवचन करते हैं, कभी वो आपके गीता प्रवचन में आया हो? नहीं, मैंने उसे देखा है, मेरी उससे बात हुई है, कभी तो हुआ हो? कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। बस हो गया, सुन लिया। तो कानाफूसी करने वाली क्या बात है? हुजूर, अब्दुल्ला की हर किसी से मुलाकात हुई है। मेरी मुलाकात उससे मूंगफली की दुकान पर हुई थी। बहुत भूखा था बेचारा। ऑर्डर। भाई ऐसा है, अब्दुल्ला मूंगफली नहीं खा सकता, वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों हो सकता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फिर तो एक ऐसे अब्दुल्ला से मेरी भी मुलाकात हुई थी। जी आप खाना खा देने आ गए, घर कुछ भी करूँ ना तो खाली नहीं है। 1920 की बात है, मैं जंगल में शिकार खेलने चला गया। मेरे पास बंदूक भी थी। सारा दिन मैं घूमता रहा, मगर कोई शिकार ना मिला। फिर थक हार कर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। जंगल के लंगूर मुझे परेशान करने लगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने बंदूक थाम ली। न जाकर किसी ने मेरी बंदूक तान ली और मुझसे कहने लगा, जिन्हें तुम खा नहीं सकते उनकी जान क्यों लेते हो? एक तक वो मेरी आंखों में देखने लगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे एक वो झाड़ के शूट कर दिया। घायल लंगूर दोनों हाथों से डाल छान में अपने आप को बचाने लगा। कितने ही लंगूर उसे गिरने से बचाने लगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने एक और फायर किया। देखते ही देखते चारों ओर लाशें बिछ गई। मैं चल पड़ा। घूमकर देखता हूँ तो जाने वो आदमी क्या निहार रहा था। अजीब मिलॉर्ड, जंगल की इस कहानी से अब्दुल्ला के केस का क्या ताल्लुक? क्योंकि उसके बाद इनकी उससे दुश्मनी हुई। उसके बाद मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? हमारे पास पुलिस की रिपोर्ट है, एक बार आपने उसे रात से थप्पड़ मारा है। जी हुजूर, उसे धक्का भी दिया, उसकी नाक नोची है। और ये खड़ा उस कत्ल को देख रहा, अपने ऐशो आराम मयासी लग्जरी फ्रीडम के नशे में धुत। What is this? अरे दूध माने दूध। मुझसे पूछो, दूध पाने नशे में दूध। हरे कृष्णा हरे राम। भाई कहेगा आंटी की तंगी नहीं। अच्छा तो आगे सुनो भाई, ये अब्दुल्ला कौन है, क्या है, मतलब कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया? मिलोड, ये अब्दुल्ला यहाँ का एक बहुत पुराना बाशिंदा है। ये सबको जानता है, पहचानता है, लेकिन लोग इसे पहचान कर इससे आगे चुराते हैं। इतिहास का कहना है पार्टीशन के दिनों में सांप्रदायिक दंगों में वो मारा गया। कोई कहता है 47 के बाद यहाँ एक नया अब्दुल्ला आया, मतलब कि वो सांप्रदायिक दंगों में मारा नहीं गया, कहीं छिप गया और अब रूप बदलकर हम सबके बीच में है। मिलोड, सब लोगों ने मिलकर उसे मारा है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती। कोई कहता है कि वो मरकर भूत प्रेत हो गया है, मगर वो जिंदा है। मतलब कुछ दिनों से लापता है, मगर वो है, लेकिन कोई उसे देखता नहीं। वो कुछ बोलता नहीं हुजूर, पर उसकी आवाज सुनाई देती है। राम कसम, हमने भी कभी नहीं देखा। मतलब उसका परिचय नहीं, वो महज महसूस किया जा सकता है। उसे कुछ कहना बेकार है, वो अपनी भाषा बनाता है और बोलता है, मगर उसका मुंह नहीं। वो चलता फिरता है लेकिन उसके पैर नहीं। हाँ हुजूर, मेरे नाना के मामा थे, उनके हाथ पैर नहीं थे पर वो चलते थे। वो गूंगे थे पर लेक्चर देते थे। एक दिन वो खाते खाते सो गए। सुबह उठकर जागे तो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, बचाओ बचाओ। तेरी ये हिम्मत तो सचिन के बीच में टांग अड़ाता है। बयान जारी रखो। तब से मैंने अब्दुल्ला को नहीं देखा हुजूर। हमारी शादी हुई? शादी या शादियाँ, मतलब मुझे गरीबी से सख्त नफरत है, वो कैसी भी हो। शादी गरीबी कहाँ से है? शादी? हाँ अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, सुनो भाई सुनो सुनो, आप किसे पुकार रहे हैं? सुनो भाई सुनो, कहाँ जा रहे हैं?
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब भागने से काम नहीं चलेगा, शादी कर ही लीजिए। किससे? ये जो पिछले कितने सालों से आपसे मोहब्बत कर रही है, आपके इंतजार में खड़ी है। क्या बकते हो? इस उम्र में इतना बड़ा धर्मात्मा, गीता में उपदेश देने वाला उस लड़की से शादी करेगा? आखिर लोग क्या कहेंगे? किस मेहनत से इतनी इज्जत बनाई है। जज की नजरों में आप ऊंचे उठ जाएंगे। वो बदमाश है। वाकई वो औरत आपसे बहुत मोहब्बत करती है, वो दिन रात आपकी सेवा कर रही है। मैं अपने लड़के की शादी जज की लड़की के साथ कर चुका हूँ। ये ट्रम्प कार्ड है मुकदमा जीतने के लिए। ये बात तुम किसी को बता नहीं सकते, वरना उस जज के सेशन से हमारा मुकदमा किसी और जज के पास चला जाएगा। देखो, तुम्हें गीता में बिल्कुल विश्वास नहीं है। फिलहाल मुझे सिर्फ आपकी शादी में विश्वास है। अरे भाई, मुझे सोचने का मौका दो। मैं औरतों से ऊब चुका हूँ यार। सारा कुछ सोच विचार कर मैं आपके इस नतीजे पे आई हूँ, और इसके कितने सारे फायदे हैं। नंबर 1, पुलिस इंस्पेक्टर उस औरत की फर्स्ट कजिन है। नंबर 2, वो ऑलरेडी मां होने वाली है। चुप रहो, मैं छांव से ऊपर उठ गया हूँ। हे अर्जुन, मेरा धर्म और कर्म अलौकिक है। जो मुझे इस रूप में देखता है वो हमेशा खुश रहेगा। तुम चलो मेरे साथ। चुप रहो, कोई आ रहा है। कह देना बम्बई गया, बम्बई बम्बई। कहाँ है वो, कहाँ है? अरे अरे, बम्बई ने बम्बई क्या? मैंने अभी उनकी आवाज सुनी है, बस अभी गए हैं। और हमारी शादी, पंडित भी नहीं आया। वो कह रहे थे शादी समझो हो ही गई, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कितनी बार बताया है, मुझे शादी करने का बड़ा शौक है। अच्छा लगता है दुल्हन बनना। मैं उनके गले में जयमाला डालूं और वो मेरे गले में। एक और पंडित मंत्र पढ़ते रहे और दूसरे और मेहमान फूल बरसाते रहे। It's so fantastic, you know. मगर ये ड्रामा तो कभी हो सकता है। जी भेड़ कौन करते हैं? वो तो देखते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला हम बाद में इत्मीनान से कहीं बाहर चलकर शादी कर लेंगे। बहुत बड़ी शानदार बारात, आतिशबाजी, बैंड बाजे। अरे मुझे बारात वारात कुछ नहीं चाहिए, बस वो पंडित और ये 2-4 लोग। उन्होंने बड़ी अच्छी स्कीम बताई, किसी फिल्म की स्टोरी ना तो फिट हो जाएगी, दुनिया सोचेगी ये फिल्म है, और आपकी सारी तमन्नाएं भी पूरी हो जाएगी। सोचिए जरा, फिल्म में शादी की दृश्य से लेकर सुहाग रात तक का सीन। अच्छी, इतना वक्त रहा है, तब तक तो मैं माँ बन जाऊंगी। अरे कहाँ है वो? अरे इधर कोई नहीं है, अंदर रोने की चीख की आवाज आई है। इधर कोई मेहमान आया है। कौन? कहाँ से? जो काहिरा के किनारे है ना, क्या नाम था? क्या अच्छा सा था? अच्छा देखती हूँ। अरे अरे चलो मेरे साथ। छोड़ता है कि नहीं? बुलाओ मेरे फर्स्ट कजन को। कजन, और मेरी फर्स्ट कजन। वेबसाइट में यस माय कजिन सिस्टर। देखिए ना, ये कहते हैं वो बम्बई चले गए। बम्बई गए बम्बई, वो जो काहिरा के किनारे में है ना, मुंबई। शादी होगी, जरूर होगी। इसको चलने खाने दो, मैं अंदर देख के आता हूँ, और ध्यान रखना ये भागे ना। कहाँ जाती है? बुलाओ फर्स्ट कजन को। चलो बात चले। हट, मैं पति करता हूँ। ओए होए, बड़ी खूबसूरत हो। क्या कहा? बड़ी खूबसूरत हो। हट, देखती नहीं, I'm interested only in rich men. हाय, ये कौन? ये उन्हीं के मेहमान हैं, काहिरा के सौदागर, उनके व्यापारी। कौन है बे तू? शेना खाशीची बोलची ये पूछते हैं आप कौन हैं? बोलचे अरबी शुदागर ऊंचा बोलते हिंदुस्तान काश्ती। ये काहिरा से ऊँट खरीदने आए हैं। इसका नाम और पता? इश्क में शरीफ साकी अब्दुल्ला खारू रशीद, साकी ने आज में दुलदुल, शहर गुले पे नादर काहिरा। नाम है अब्दुल्ला खारू रशीद, आज में दुलदुल। कब और कहाँ से आया? कबाशिया, सोसाचिया। सुचा, जुमा हैंची। परसों शुक्रवार को ही सीधे वतन से आए हैं। सुचा सांझी दोस्त वाला, जिगरी सांझा। ये उन्हीं के जिगरी दोस्त हैं। खुशा मशीद, तशरीफ रेश्ते हैं। ये रिश्ते भी भूले हो सकते हैं। देखने में तो बदमाश लगता है। क्यों बे? तू उनका व्यापारी है? कमाने को लुगत फानूस, तकलीफ माफ। क्या बोला? ये आपकी भाषा नहीं जानते, तकलीफ माफ कर रहे हैं। हम भी नहीं जानते। ये कह रहे हैं हिंदुस्तानी खूबसूरती लाजवाब है। अच्छा, लो उसे चने चलवाओ। ये गुस्ताखी मैं कैसे करूं? लो तो खुद खाओ। अरे ठहरो, कहाँ जा रही हो?
नवाज आदत। तुमको नहीं। कृष्ण दरिया गिंजा तू माशा रहम दिल तारी दरिया गिंजा रहम तारी तारा बच्चा मुश्किल नहीं तो सब मुश्किल। कजन ब्रदर सुनो। यस माय कजन सिस्टर। चल रहे उधर। तुम कितने अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी है। लो चने खाओ। ले अरबी तू भी खा। झटपट हमारी शादी कराओ, पंडित बुलाओ। पंडित नहीं आया। फिर आ जाएगा, ऐसी क्या जल्दी है? अरे मैं बुला लाती हूँ। नहीं, पंडित ने बोला है अभी आज ही शादी की फर्स्ट क्लास लाइन है। सुनो सुनो, पंडित की क्या जरूरत है? शादी करवानी है ना, वो तो मैं भी करवा दूंगा फर्स्ट क्लास। चलो चारों ओर से दरवाजा तो बंद कर लो कम से कम। चलो डायरेक्टर साहब आप साइड में, दूल्हा दुल्हन सेंटर में। अरे दूल्हे की दाढ़ी तो हटाओ। ठीक है। जवान सावधान, विश्राम, सावधान। अब दूल्हा आगे चलेगा, दुल्हन उसके पीछे चलेगी। क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कमर तनी, नजर सीधी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। जल्दी जल्दी करो, इतना समय नहीं है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, थम। दूल्हा खड़ा हो जाओ, चलो चलो, एक दूसरे को देखो। कब तक चलेगी दिल? अरे मजा ही आ रहा है इतना। चुपचाप जितना कांधे रखा करो। अब दूल्हा 2 कदम आगे आएगा, लेफ्ट राइट। अब दुल्हन 1 कदम आगे चलेगी, लेफ्ट राइट। अब दूल्हा दुल्हन के गले में जयमाला डालेगा, जयमाला डाल। अब दुल्हन दूल्हे के गले में जयमाला डालेगी, जयमाला डाल। अरे शादी के मंत्र कहाँ पड़ गए? अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। साथ बार घूमना भी तो होता है। टेंशन मत रखो, मैं फर्स्ट क्लास पंडित हूँ, सब कराता हूँ। लो डायरेक्टर साहब। तुम तो लाए नहीं, हमको लाना पड़ा। अब दूल्हा दुल्हन मेरे चारों ओर फेरे लेंगे। क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट। शादी कब हुई? बहुत जमाना हो गया। ये कौन सी शादी है? जी दूसरी शादी, पहली शादी से यही एक लड़का है। एक शादी इसी मुकदमे के दौरान की गई है, अपने आप को बेकसूर और इज्जतदार साबित करने के लिए। नहीं मिलॉर्ड, ये शादी इस मुकदमे से 4 साल 3 महीने 13 दिन 22 घंटे 2 मिनट और 6 सेकंड एक मिनट, एक में हुई है। चाबी घड़ी घड़ी में रुकी। ये शादी का सबूत क्या है? जी ये है मैरिज एल्बम। ये कागजात शादी के। क्यों देवी जी आप अरे तो हो क्यों आपकी बीवी है? और नहीं तो क्या? बहुत अच्छा जवाब दिया। अरे भाई बड़ी सीधी और शरीफ औरत है, ऐसा करने को मजबूर हुई है। ये सारे सबूत फर्जी हैं, बनाए हुए हैं। वकील साहब दे दो असली सबूत। हरिओम। लॉर्ड ये माँ बनने वाली है, गर्भवती धर्मपत्नी। गणपति गणपति अरे गर्भवती धर्मपत्नी जननी मदर डिवाइन। तो भी ऐसी जगह क्लोजअप थोड़ा वाइड कर रहा है थोड़े बहुत क्लोजअप कभी कभी ऐसी बीच फील आती है कि बस और ये जरा कुछ जाना तो 34 मिनट के हो चुके हैं 24 मिनट की भी रह गई है सो वंस ये 5 मिनट की रह जाए कॉल हम निकलना पड़ता वो है। डीवीसी को चेंज करते हैं राइट राइट लेफ्ट खुजली भी क्या चीज है वाह मजा ही आ गया। आप शादीशुदा है जी तो आपका हस्बैंड कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है। मतलब आपका सिर टकराता है? मतलब आपको आइसक्रीम के टेस्ट की बजाय गोलगप्पे का स्वाद पसंद आता है? मतलब आपको दिन में नींद आती है और रात को जमाइया आती है? मतलब जब आप चलती है तो अपना दायां पाँव आगे आता है या बायां? मिलॉर्ड ये बेबुनियाद सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं?
बात गई वाह। कैसे कहिए? क्या कहा? क्या कहा हाजिरो? बताओ किससे याद है उन्होंने क्या कहा? हुजूर मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि भैंस का दूध गाय के दूध से ज्यादा अच्छा होता है। जी नहीं, इन्होंने कुछ असली और नकली चीज के बारे में कही थी। अरे नहीं, इन्होंने किसी केस के बारे में बात की थी। मैं अभी आया, बाथरूम जा रहा हूँ। बार-बार पीने से यही होता है, किडनी लीवर खराब हो जाते हैं, बार-बार बाथरूम भागना पड़ता है। एग्जैक्टली मिलॉर्ड, मैंने यही कहा था। अरे पर इस बात का केस की ताल्लुकात क्या ताल्लुकात है केस से? जी मिलॉर्ड, अब याद आया, पूछा ये जा रहा था कि इनके पेट में कितने महीने का बच्चा है। हरगिज नहीं, अदालत का काम किसी के पेट में घुसना थोड़ी ना है। कहिए, आपने अब्दुल्ला को कब देखा? जब आपकी शादी में आया था? मैंने नहीं देखा। अब्दुल्ला को? कौन अब्दुल्ला? ओए, ए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। ओह अब्दुल्ला टेलर मास्टर, ऐसा कहिए ना। जी हाँ, कई साल पहले मैं उससे अपनी ब्लाउज सिलवाती थी, पर काफी टाइम हो गया, बहुत पुरानी बात है। वजह क्या थी? काफी बुढ़ा हो गया था, ब्लाउज के नाप नहीं ले पाता था। फिर क्या आपने अपना टेलर बदल दिया? अच्छी कहा, वो अब्दुल्ला दूसरे टेलर के पास पहुंचा और बोला, शर्म नहीं आती? औरतों के इतने टाइट ब्लाउज क्यों सिलते हो? मैंने कहा, तुझसे मतलब? उल्लू कहेगा, उससे क्या मतलब? दत्तरे की। भाई, औरतें पर्दे के पीछे रहते रहते थक गई थी। इसका मतलब तो औरतें जरूर निकालती, हाँ नहीं तो भाई और चीजें दिखाने के लिए बनी है। और नहीं तो क्या? तो मैं क्या कह रही थी? मुझे अपना दूसरा टेलर बदलना पड़ा, तीसरा और चौथा भी। पांचवें के पास तो जाके लड़ पड़ा, बोला खबरदार अपनी बेटी बहू की उम्र की लड़कियों के अगर नाप लिए तो। मैंने कहा हो भाई हो, तुझसे मतलब? उसने कहा तुझसे मतलब? मैंने कहा मतलब क्यों नहीं? उसने कहा शट अप, आई सेड गेट लॉस्ट। ये तो कुछ इसका मामला लगता है। आप इधर आइए, मेरी भी सांस लीजिए, मैं सुनता हूँ। चलिए शुरू करिए। अच्छा, अच्छी भाई आपको इश्क हुआ उससे? चक्कर से इश्क करूंगी? तो वो तो कर सकता है। मुझे उससे तक नफरत थी। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, इन्हें अब्दुल्ला से नफरत थी। भाई मुझे भी बात करने दो। आप लोग किस अब्दुल्ला के बारे में बात कर रहे हैं? आपका वजन कितना है? वो अब्दुल्ला कहाँ है? नाइट गाउन बड़े अच्छे सिलता था। अरे पूछा जा रहा आपका वजन कितना है? कुछ बता दो। हुजूर 60 किलोस। आपको हंसी क्यों नहीं आई? मुझे हंसी नहीं आती। क्यों? जवाब दो, तुम्हें हंसी क्यों नहीं आती? काफी अरसा हो गया। मैं मामूली सी क्लर्क थी, एक एंग्लो इंडियन मेन के बंगले के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। अकेले या फैमिली थी आपकी? फैमिली थी, वो 60-65 साल की थी। उसका शौहर मर चुका था। हम उसकी काफी इज्जत और खिदमत करा करते थे। जब भी उनसे मिलते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते, जब भी उनके सामने पढ़ते आमीन। ठीक है, फिर सर्वेंट क्वार्टर में थे ना? हाँ, सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर आप गए बाथरूम, फिर ड्राइंग रूम, बेडरूम और फिर बंगला आते आए हैं। मगर वो तो बहुत पहले की बातें हैं, बहुत पहले। तो क्लाइमैक्स पर आओ, उतना टाइम नहीं है। तो हुआ यूं कि वो गुड़िया में दम तोड़ रही थी। और तुम उसके सेब ज्वेलरी साफ करने में लगे थे। नहीं नहीं नहीं। तो तुम उसकी बिल पे साइन करवा रहे थे। हाँ। तो हुआ यूं कि मुझते समय वो गुड़िया में हंसने लगी। जी, साइन करो। साइन। कोई पानी लाओ। पानी आ रहा है। जी पानी आ रहा है, साइन करिए। पूरा नाम लिखिए। और एक अजनबी आकर मुझसे बोलने लगा, ऐसा क्यों किया तुमने? मनुष्य धन का गुलाम है, लेकिन दल तो किसी का गुलाम नहीं। मेरा काम तो पूरा हुआ। मैं बताऊंगा कब हंसना है, मुंह बंद रखो। मुझे हंसी ही नहीं आती। मुझे ये नहीं पता चलता मुझे कब किस बात पर हंसना चाहिए। उसके बाद अब्दुल्ला से कब मुलाकात हुई? मैं नहीं जानती अब्दुल्ला। अरे भाई, जब आप बैंक से जाते हुए जब आपने अपनी ही दौलत पर डाका डलवाया तो वो अंदर जाके बंगले पे आया था। अरे वो तो कोई पागल था। सड़कों पे ऐसे बहुतेरे एक ही शॉट घूमते मत बनाओ। मेरे टैली वर्ड जो बोल रहा है ना, कब का हार निकाल उसको दिया। टैली लेके उसके कत्ल में तुम्हारा हाथ है।
मिलॉर्ड, ये कितनी पुरानी बात है और हाईकोर्ट ने इन्हें बेकसूर छोड़ दिया था। अच्छा। हाय सर, ऐसी बात है कि कोर्ट में कोई एक मुकदमा तो ना है ना, 20 मुकदमे हैं। अब जाहिर है जिस जिसका मुकदमा आ रहा है जोर तो बचाएंगे साहब। तो पेशकार साहब को बोलो, तारीख डाले खत्म करें। पेशकार साहब अपनी तीसरी कोठी के शिलान्यास के लिए छुट्टी पर है, वो अब 1 हफ्ते बाद आएंगे। उनको घूस लेना जो है ना महापाप लगता है। कहीं से भी 4 फाइलें खींच लो फटाफट। जी हुजूर। सरकार का नाम डॉक्टर भारद्वाज, हाउस सर्जन पीएमजी हॉस्पिटल। हुजूर, दिस इज अ वेरी फेमस रेप केस। हॉस्पिटल में एडमिट एक लड़की के साथ डॉक्टर ने रेप किया। दफा ताजीरात हिंद। दिस इज बेसलेस मिलॉर्ड। डॉक्टर भारद्वाज अपने चरित्र और उसूलों से पक्के राष्ट्रवादी रहे हैं और इस वक्त पीएमजी हॉस्पिटल विरोधी पार्टी के शासन में आ गया है। दरअसल ये मामला पॉलिटिकल है, इसीलिए डॉक्टर भारद्वाज के खिलाफ ही साजिश की जा रही है। हुजूर, दूसरा हुजूर, परवीन टंडन का कत्ल उसके शौहर ने सुहाग रात को किया। पुलिस की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है हमारे पास। हुजूर, रिपोर्ट मुझे पढ़ने दी जाए। मुझे बयान देने दिया जाए। मुझे सफाई देने दीजिए। परवीन टंडन के शोहर को तो पढ़ने दीजिए, बोलने मुझे दीजिए। सुनने तो दीजिए। केस पढ़िए प्रवीण टंडन का। हुजूर, मीर चंदानी एंड कंपनी ने 1971 के जनरल इलेक्शन में कुल 33 लाख चंदा दिया। अब उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है कि आखिरकार उनके पास इतना पैसा आया कहां से? बस प्रवीण टंडन का केस कहाँ गया? हुजूर, लगता है पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आपके सेशन से दाएं गया, फिर बाएं गया, वहां से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर सट गया। मैं इतनी देर हुजूर, इतनी देर में पृथ्वी सूरज के 33 किलोमीटर चक्कर काट चुकी है। इतनी देर में इस पृथ्वी में 33 लाख बच्चे पैदा हो गए हैं। इतनी देर में इस मुल्क में 2 करोड़ 33 लाख व्हाइट मनी ब्लैक मनी हो गया है और इतने ही नौजवान बेगारी में सड़क पे घूमने लगे। हुजूर, इतनी देर में इस शहर में ना जाने कितने बलात्कार, दुर्घटनाएं, मर्डर और आत्महत्या हो चुकी है। सरकारी वकील, फिर वजह क्या है? हुजूर, इस सीआईए मसले पर मुझे बहस करने का एक बार मौका तो दिया जाए। It is CIA to prove that it is CIA. Okay, I hereby adjourn the court for the coffee break. जाओ पी के आओ। Due to shortage of time, we will continue. आप लोगों ने कॉफी शॉफी पी ली, सिगरेट वगैरह फूंककर एक दूसरे को गालियां दे ली, बहुत बढ़िया। इससे हाजमा सही रहता है। चलिए हम उसी अब अब्दुल्ला मर्डर केस पर वापस आते हैं। शुरू करिए। कहता हूँ ये मुकदमा बंद कीजिए। बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हाँ माय डियर मम्मी लॉ, बेटे लोग तो हरि कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा। सनी, खबरदार। डैडी, खबरदार। वाह बेटा, जवान है। ये बड़े घरों के लौंडों के चौचले हैं। सोचिए भला मेरा लड़का ऐसे क्यों ना हुआ। बेटा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल की हवा खानी पड़ेगी मामा। ये बड़ा ही ड्रामेटिक झगड़ा लग रहा है। हुजूर, ये उस कत्ल का गवाह है। बीटल्स और पॉप म्यूजिक के शोर में, marijuana के धुएं के नीचे, हरे कृष्णा हरे रामा। नहीं जज साहब, ऐसे ही बक रहा है, बड़ा शरीफ लड़का है। अच्छा, ये महज बातें करता है। कितना प्यारा बेटा है मेरा। नहीं हुजूर, इस पे अलग से पब्लिक न्यूसेंस का केस भी चल रहा है। ये शादीशुदा है? जी हाँ, इसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, कहाँ है इसकी बीवी? हाजिर करो। हाजिर है। अरे वो है कहाँ? इसकी बीवी हाजिर हो। उसके साथ मेरी मुलाकात हो गई थी। मतलब किसी के साथ जैसे मुलाकात हो जाती है, याद करा दी जाती है। हाँ, मेरे दूसरे लोग अच्छे नहीं लगे, लेकिन बुरा भी क्या था, चेंज और तफरी के लिए अच्छे बुरे का सवाल नहीं उठता। मेरे पास 1000 रुपए पॉकेट मनी। डैडी कहते ब्लैक मनी जला के रोशनी करो रोशनी। मेरे पास कारें, लड़कियां और मेरा अकेलापन। जी हाँ, धन दौलत और लड़कियों के साथ मेरा अकेलापन। अकेलेपन का वो अल्फाज मुझे फ्रेंच हिप्पी लड़की से मिला। अकेलेपन का एक अजीब एहसास। मुझे डर लगता कि कहीं वो अकेलापन मुझे छू ना जाए। फिर कहाँ जाता, क्या करता?
वही लड़की मेरे सामने। डैडी ने कहा सनी शादी कर इससे, मगर वो लड़की बोली मैं गांव वाले से शादी करूंगी। मैं बोला ये क्या? मगर वो लड़की बोली विद्रोह प्रयोग। मैं बोला हरे कृष्णा हरे राम। कहाँ हो जी? ओ जी, फिर मैं जा रही हूँ। हाँ, अरे आ रहा है, बैठो, देहाती करने प्रैक्टिस कर रहा है। गाँव की बोली बोलने लगा फटाफट, और देहाती का लिया लगता है। सोड़ी सोड़ी। वंडरफुल। और कपड़े? कपड़े भी देहाती, चाल चलन भी। अरे वाह, बुलाओ बुलाओ। आओ भाई आओ। ये रहा देहाती दूल्हा। इधर देखो। आप लोग जाइए। नहीं ये मुझे मारेगी। क्यों है? हिम्मत से काम ले, हिम्मत से। उनका देहाती हीरो जैसे शहरी हीरोइन के साथ करते हो ना, वैसे ही। अरे हाथ पैर से काम ले फटाफट। चल हल चला। हल चलाता है? अजी ये हाथ पैर जबान भी चलाता है। शट अप, मैं ये सब चक्कर नहीं कर सकता, भाग जाओ यहाँ से। मजाक कर रहा है, बड़ा मजाकिया हो गया है। बदल लेता है। चलो चलो अंदर दिखाए क्या के देहाती कपड़े चीजें। आओ आओ आओ, आओ, बेटी। सब मुँह खिंचाए रखिए। समझता क्यों नहीं? कोई बात तो मान लिया कर, शादी क्यों नहीं कर लेता उससे? जिंदगी में कोई एक काम तो पूरा कर। क्या नहीं कर रहा? मेरी दौलत फूकने के अलावा क्या कर रहा है? खुद तो फूक कर जो चला रहा हूँ। ये तो कोई काम नहीं। कुछ नहीं करना भी एक काम है। काम वो है जिसमें फायदा हो। काम वो है जिसमें फायदा नुकसान ना हो। वाह बेटा, मुझे गीता प्रवचन देगा, उसका अधिकारी केवल मैं हूँ। मुझे उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं। लड़की है। तो मैं भी इकलौता लड़का हूँ। किसका? पता नहीं। जैसे मैंने उस औरत से शादी की थी ना, मुझे भी इस लड़की से शादी करनी होगी। लेकिन वो शादी नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रही है डैडी। तो हम कौन सा शादी कर रहे हैं? समझता क्यों नहीं? वो बेगानी शादी। व्हाट बेगानी शादी? जिससे शादी करने वाले का कोई मतलब ना हो। सर मतलब क्या है? यही तो मतलब है, मुकदमे से छूट जाना। मैं मुकदमे में नहीं फंसा हूँ। हम सब कत्ल केस में फंस गए हैं। ऐसा कत्ल? ये तो नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। धीरे बोल, धीरे। वो लड़की कौन है? लड़की है। वो एक देहाती गाँव से क्यों शादी करना चाहती है? बकवास बंद करता है नहीं? तू बकवास बंद करता है नहीं? मैं तेरा बाप हूँ। मैं तेरा बापू। मैं तेरा बाप हूँ। इसका सबूत? बंद कर वरना जेल की हवा खाएगा। मजा आ जाएगा डैडी। देख, तूने मुझे डैडी कहा। तो आदत हो गई है। चुप कर वरना तेरा गला फोड़ दूंगा। तेरे LSD खा लूंगा। तेरे होश ठीक कर दूंगा। मजा आ जाएगा। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं तो तेरे पैर भी पड़ जाऊं। तू समझता क्यों नहीं? आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं? हाँ, आप तो कुछ भी बन सकते हैं। देहाती, जानवर, बान मनुष्य। आ रही है। लेकिन वो शादी नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रही है। और मैं भी शादी कर सकता हूँ। मैं भी कन्फर्म गंवार लड़की से शादी करूंगा। मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। जा रहा हूँ। सुन, मैं अपनी सारी धन दौलत दूसरे के नाम कर दूंगा, भूखे मर जाओगे भूखे। हरामी, हरामी की वजह से जल्दी कर जल्दी, तेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास है। चुप कर। कत्ल, मर्डर और जुल्म। अरे ये क्या? अरे गांव में जैसे होता है वही तो हो रहा है। चोरों गांव वाले। ये ले, चल चला कवर्धा। कितने अच्छे लग रहे हो। अरे ससुरी, तू डंडा मारूंगी। चल मेरे पीछे। ये क्या करती है? और गाने तो मुझे I like it। अच्छा सुनो सुनो, एक गाना तो सुनाना। तू सुना, मैं हल जोतू। ये क्या करते हो? ए भगवान, बचाओ! इस लड़की से मुझे कोई बचाओ! इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट करेगा मेरे डंडा। अरे मारते क्यों हो? अरे 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 अब कौन? देख साले, ये मुझे मारती है। ये आपको गाली देता है। It's easy to come kick man. देखिए, ये फिर देहाती जवान ने बोला है। दरअसल मैं चाहती हूँ ये मुझे बंदी से बंदी कर लेते, but he is a bloody coward। दरअसल हमारा खानदान काफी ऊंचे ख्यालों का है। हमारे यहाँ कभी किसी कुत्ते बिल्ली को भी गाली नहीं दी गई। आपस में गाली गलौज करते हैं।
नाम अपनी बायोग्राफी लिख रहा है। मेरे पिता के पिता दीवान थे। दीवाना थे? तू क्या बीच में बोलता है? तेरे लाउड स्पीकर हूँ डैडी। मेरे बाबा के घर में एक बड़ा किला था बेटी। किला ही पूरा घर था। मेरे पिता राजा थे। पेंट बाजा थे। चुप्पे चुपे। मेरे पिता के पिता मैजिस्ट्रेट थे। ऊंट थे। देखा बेटी, अब ये काफी देहाती हो गया है। अब जल्दी से शादी भी कर लो। शादी का सारा इंतजाम पूरा है। नहीं, मगर ये भी अधूरा है। पर ये गार्ड का पूरा है। इसके नाम करोड़ों रुपए हैं। 4-4 कोठियां हैं इसके नाम। 2-2 गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, इम्फाला। तुम्हारी शादी में राष्ट्रपति आएंगे। फिल्म सितारों की कतारें लगी होंगी। अखबारों में फोटोएं छपेंगी। हनीमून के लिए तुम चाहे होनोलुलु जाओ, चाहे पेरिस, चाहे मून में हनी, चाहे हनी में मून। परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है। परमात्मा क्या चीज है? परमात्मा परमात्मा मेरी माँ का नाम था। सही कहता है। मेरी माँ की मृत्यु के बाद एक सेठानी मिली, फिर एक विधवा बंगालन, फिर वही कहानी, फिर वही लंगड़ा आलू वालिया, ईंट का भट्टा, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंस कंपनी और फेरी टेल, फेरी टेल, फेरी टेल, फेरी टेल। तो शादी हो ही जाएगी। शादी का सारा इंतजाम है यार, सारी चीजें भी तैयार है। नॉन वेजिटेरियन में मुर्ग मुसल्लम, सीख कबाब और वेजिटेरियन में शाही पनीर, दाल माखनी। शादी का मौसम भी इतना सुहाना है, ना ज्यादा सर्दी ना गर्मी। अब ठाट से कहूंगा अदालत में, माय लॉर्ड, मेंबर्स ऑफ जूरी, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। आप चाहे इसे प्रेम विवाह कहें, चाहे प्रयोगवादी, चाहे सनातन धर्म की। घोड़े पे सारे बाराती सवार थे, झांकियां चल रही थी, आगे आगे मिलिट्री के 3 बैंड चल रहे थे, आसमानों में कतारों में हवाई जहाज चल रहे थे। भाई साहब, ये रिहर्सल का वक्त नहीं, मेहमान आने लगे। ओह, आइए आइए मिस्टर बच्चन, प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज बैठिए। Oh, Mr. Nair, please have a seat. Hello, Mr. Padhya, welcome. This way. ओह रणवीर जी, प्लीज तशरीफ रखें, बैठिए। Mr. Gupta, आइए, इधर से आइए. Hello, Mr. Arjun, welcome. This way. ओह मिस्टर धोनी, प्लीज, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने एक मिनट से हमारे लिए वक्त निकाला, प्लीज सिट डाउन। Attention please, भाइयों, दोस्तों, मेरे अजीज मेहमानों, as it's my son's wedding, so only cocktail, बाद में dinner. Oh no tea, no soft drinks, no juices, only cocktail. महिलाओं के लिए champagne. Thank you very much. Thank you. आइए, this way. Please, आइए. डैडी, डैडी, यहाँ क्या कर रहा है? तैयार क्यों नहीं हुआ? शादी का सारा इंतजाम पूरा है। मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? इतनी खूबसूरत लड़की, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तेरे को? तो क्या हुआ? वो पागल हो गई है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। सब मान चुके हैं। अब देख, इसको पता भी नहीं चलेगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। शादी भी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखता रही हो। जानवर। मैंने भी देखा, कोठे में इतना बड़ा जानवर घुस आया। 12 फुट लंबी हो गई, 16 फुट लंबा हो गया। बड़े बड़े हाथ, मेरे पति में जैसे कोई जानवर ही आ गया। जैसे
जैसे नंगा पेड़, जैसे कोई नंगा पहाड़। खून खून। ऐसा उसने बहू के साथ किया? जानवर, एनिमल, जानवर। अरे तो क्या हुआ? उसने निष्काम भाव से काम किया। जानवर। मैं गीता पाठ कर रहे हैं। उसका गला घोट दूंगा। वो लड़की अब कहाँ बेहोश पड़ी है? वहाँ कोई नहीं है, शादी हो गई। वो पागल क्यों नहीं हुआ? उसकी जरूरत पड़ी तो हो जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? मत छू मुझे। आप तो उसकी धर्मपत्नी हैं, आपको साथ देना होगा। मेरे धर्मपति ने इतना शर्मनाक काम किया, फिर भी मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? ये रुमाल नाक पर रखकर थोड़ा रो भी लीजिए, जी हल्का हो जाएगा आपका। अरे ये क्या? पागल हो गए? शौक लगा है उसी का? ये लीजिए दूसरा रुमाल। शादी हो गई। अब तबीयत कैसी है? हटो जी, तुमने ऐसे बहू के साथ क्यों किया? मैं जा रही हूँ। चलो बात तो बन गई। इस शादी में अब्दुल्ला आया था। क्या तुमने उसे देखा था? भला दूल्हा कहाँ से देखेगा? शादी में कितने लोग आए थे? असंख्य। वकील साहब, जरा साहब को शादी की एल्बम तो पेश कीजिए। ये देखिए, बच्चे आए थे, देखिए नायक। हुजूर, उसकी मूवी भी बन चुकी है। होनी चाहिए वो एक आदर्श शादी थी। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, आदर्श और मर्यादा जैसे मुश्किल अल्फाज नहीं चलेंगे। उस शादी के बाद आपके इस लड़के ने आपसे बोलना क्यों बंद कर दिया था? दरअसल उस शादी में मुझे एनिमल थ्रेसिस अटैक हुआ था। ये जानवर डॉक्टर की सलाह थी कि मुझे ज्यादा बोले चाले नहीं। ऑर्डर हो गई। अब्दुल्ला कहाँ था उस शादी में? कमाल करते हैं, एक और अब्दुल्ला की मौत का मुकदमा चल रहा है और दूसरी ओर ये पूछा जा रहा है कि अब्दुल्ला कहाँ था उस शादी में। तुमसे जो पूछा जा रहा है बस उसी का जवाब दो। कुछ लोग तो मरकर भी जिंदा रहते हैं और कुछ लोग तो मरते ही नहीं। अब्दुल्ला मरा है या जिंदा है? मैं जानना चाहती हूँ, ये तकलीफ किसे है? किसी को इस बात की चिंता है? लॉर्ड, मुझे कहने की इजाजत दी जाए। ये उन लोगों की महज दिमागी अय्याशी है जिनके पास और कोई बुनियादी मसले नहीं होते। मैं पूछती हूँ, आज किसे फुर्सत इस सड़क पर उस कुचलकर मरे हुए कुत्ते को रुककर देखने की, जिसकी मौत आखिर लाजमी थी? मिलोद, गौर कीजिए, अब्दुल्ला की तुलना कुचलकर मरे हुए कुत्ते से की जा रही है। सही की जा रही है। आप उसकी मानहानि नहीं कर सकते। जब वो इतना बड़ा वीआईपी था और उसकी मौत का इतना खतरा था, तो सरकार को पुलिस से उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। हमारे नेता, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के संचालक, बड़े-बड़े महात्मा तब कहाँ थे? बिल्कुल ठीक कहता है। आज चले हैं उसकी लाश खोदने और मुझे पकड़ने। हाँ, नहीं तो हुजूर, मैं जोर देकर कहता देखिए हूँ, देखिए, ज़रा जोर देने की जरूरत नहीं। मिलोद, बिना अब्दुल्ला हमारी जिंदगी खतरे में है। हुजूर, कुछ मुझे भी बोलने की इजाजत? हाजरीन, अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। अब मैं एक सच बोलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, पेट में जोर पड़ेगा भाई साहब, रहने दो। खतरा अब्दुल्ला के होने या ना होने से नहीं है, खतरा है अब्दुल्ला की बातें करने से। क्यों? मैं बताता हूँ। ये हमारी आज की इतनी बेचैनी, ये चाहे किसी की मौत से हो या चाहे किसी के जन्म से, ये उस बेकार पुरानी गंदी आत्मा की बेचैनी है जिसका सारा रहा होगा अब्दुल्ला। क्या कहा? बेटा नहीं, जननी। ये हंसने का बड़ा हंसो। मेरा ख्याल है अब्दुल्ला किसी बीमारी का नाम रहा होगा, पर मेरा उससे कभी कोई ताल्लुक नहीं। वही फिल्में, वही वक्त, मकान, वही प्रेम। तो इस भीड़ में किसी एक विशेष की जिंदगी और मौत की खोज करना सच्चाई के साथ फ्लर्टेशन है। यस, ये फ्लर्टिंग विद इररिलेवेंट। अगर कोई रेलेवेंट है तो ये मेरा डैडी। क्यों डैडी साहब? मजाक कर रहा है। इसके लिए तो सब कुछ मजाक है, मैं बताता हूँ। अरे अरे, सेशन कोर्ट है, छोड़ो। अरे अरे अरे, ये किसकी तरफ था? दूल्हे की तरफ या दुल्हन की तरफ? मिलोड, सरकारी वकील खामखा ऐसे सवालात कर रहे हैं जिसका इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। मिलोड, मुझे जिरह करने की इजाजत दी जाए और ये देखा जाए जब मैं मुल्जिम से सीधे बात कर रहा हूँ कोई बीच में अपनी टांग ना अड़ाए। भाई ठांग अड़ा सकते हैं, लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए।
आगे बढ़िए बस जुबान लौट रहा है सिर्फ नाम रहेगा बस और कुछ नहीं प्रॉपर्टी हाँ तो उसे किस तरफ देखा मतलब कि वो बनाती था बनाती I don't know your bloody language. सनी वो किसके साथ था क्या पहना हुआ था उसने कैसा दिख रहा था उस समय मैं LSD के नशे में था। ये क्या है भैया? एक खुराक मुझे भी। हुजूर तो ये LSD भी खाता है ये क्या चीज है भाई हमें भी दिखाओ हुजूर ये एक निहायत जहरीला नशा है जो ये करता है चपरासी जी। अरे वो तुम्हें LSD खिलाओ भाई जी जी जी। मैंने कहा तू क्या हुआ फॉल्ट फेडरेशन है ना हमारी मदद करेगा में ले रखना है जब खड़ा होकर टाइम अप ये वो भी लड़ रहे हैं तो जनाब मैं हंस रही हो हूँ। सकता है अच्छा बाकी तो वाइड और आप क्या कर रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं तो लीड है तो जहाँ बैठा है, नहीं वहीं लगता बैठिए। चलिए ऐसे पुकारिए कोई इसकी बीच में खड़ा हुआ वो कुछ झगड़ा इसका करेगा ओ इसकी बीवी। हाँ भाई इसकी बीवी हाजिर हो। हाजिर हैं वो है कहाँ जी पुलिस इसकी तलाश में है। अब तक फरार क्यों है फिर अजी उसकी तबीयत खराब है। वकील साहिबा दिखाइए मेडिकल सर्टिफिकेट। लॉर्ड शी इज इन फैमिली वे। हुजूर ये सबूत झूठे हैं जी नहीं सबूत बिल्कुल असली है। हाँ, इसकी भाई इसकी भाई की तबीयत खराब है अभी मैं गवाह हूँ इसका और कौन मैं भी गवाह गवाह हूँ इनकी शादी मेरी बेटी की शादी की। और कौन गवाह है मैं भी हाँ नहीं तो गवाह होने में तो फायदा ही फायदा है हाँ नहीं तो। तब से मैंने अब्दुल्ला को नहीं देखा उसका कत्ल हुआ है नहीं, वो जिंदा है। क्या कहा जी हाँ हुजूर मेरे नाना के मामा थे पर पहले वो अब्दुल्ला तिरंगा कपड़ा पहनता था फिर लाल फिर पीला फिर हरा और फिर गेरुआ आने लगा जाने लगा आए राम गए राम फिर कहता था मैं एक ही रंग का कपड़ा रोज ना पहनूंगा। जी हाँ वो हर रोज कपड़ा अलग रंग का कपड़ा पहनने लगा हर रोज। मिलोड मेंबर ऑफ जूरी मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों के बयान झूठे हैं। इन लोगों ने अब्दुल्ला का कत्ल कर उसकी लाश कहीं गायब कर दी है। मिलोड मेंबर ऑफ जूरी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों के सारे बयान बेबुनियाद हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। इसकी बीवी को पुकारो चपरासी। भाई हाजिर भी हो जाओ मैं बात बताई आ गए। हमने सामने बात नहीं कर सकते। लो पेट फेर लो मुझे अफसोस है, तुम औरत है। मुझे सख्त अफसोस है तुम मर्द है और उससे भी ज्यादा अफसोस तुम मेरा धर्मपति है। हमारी शादी हो गई। देखते नहीं हम डाइवोर्स की तैयारी कर रहे हैं। शर्म, जानवर, मैं माँ बनने वाली हूँ। उसी जानवर से आई हेट यू। हाय आई लव यू। अब तेरे भीतर वो गाँव वाला आदमी आ गया। हाउ नाइस। नॉनसेंस। तो ऐसा क्या हो गया मेरे प्राणपति धर्मपति वगैरह वगैरह। कुछ हुआ ही तो नहीं। तुम्हारी शादी हो गई। मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। और भी उसी जानवर से। मेरे धर्मपति तो तुम हो। इसकी जरूरत मुझे नहीं। तुम्हारे डैडी को तो है मुकदमे से जो छूटना है उसे। मैं जज के सामने सब साफ साफ कह दूंगा। नहीं कह सकते। यू आर अ ब्लडी कावर्ड। जलील है। तभी तो ये सुंदर जोड़ी है। एक अंधा और एक कुड़ी है। शर्म, तुझ पे कोई असर नहीं। क्या फर्क पड़ता है डियर। दुनिया हमें बेवकूफ बनाती है हम उसे बेवकूफ बनाए। इसी का नाम तो नया अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला मारा गया। नया अब्दुल्ला पैदा हुआ। इसे हम कोर्ट में साबित कर देंगे। कत्ल का मुकदमा खत्म। मुझ पर तेरी वजह से पब्लिक न्यूसेंस का भी चार्ज है। मैं तुझे बेदाग छुड़ा लूंगी। जब कोर्ट में जज को पता चलेगा कि दूसरी जज की लड़की है तो मुकदमा उसके सेशन से दूसरे सेशन खिसक जाएगा। मैं उस जज की लड़की नहीं। किसकी लड़की है? कौन है तू? आप LSD खा ले वरना सच्चाई हमें पागल कर देगी। ना जाने क्यों मैं तुझसे एक क्षण के लिए ईमानदार होना चाहती हूँ। आओ LSD खा ले। मुझसे शादी क्यों की? इलॉजिकल
छोटी सी बात के लिए कोई इतनी बड़ी मेहनत क्यों करेगा? अल्लाह इसके कितने और मकसद हो सकते हैं उसके दिमाग में। डैडी महान है और तू उसकी नानी है। तो लो पैचू। मेरे हाथों से फूल झड़ रहे हैं। नहीं नहीं, कीड़े गिर रहे हैं। काला, पीला, नीला, सफेद, बैगनी। पहाड़, नदियाँ, हाथी, घोड़े, सांप। मेरा लिस्ट दिखाए। वो आ रहे हैं। अरे वो कहाँ है? वो कौन? वो यही भागे आए थे। कौन? यही पागल खाने से भाग आए। उनका दिल और दिमाग पहले से ये लड़की की वजह से खराब था। दिल और दिमाग। और ऊपर से एक हादसा और हो गया। एक जगह गीता प्रवचन देते देते उनके मुंह से निकल गया, हमारे यहाँ तो अब्दुल्ला की हत्या हुई है। वकील साहिबा ने सलाह दी है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें पागल खाने ही रख दे, नहीं तो हम सबको जेल हो जाएगी। फैंटास्टिक। ये सारी कलाकारी सारे अखबारों में छप गई है। अखबारों में उनकी बायोग्राफी छपी है। अरे डॉक्टर आप में से कोई डॉक्टर? अरे डॉक्टर! हेलो डॉक्टर साहब, हेलो। जी हाँ जी, फौरन आइए। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं बीमारी क्या है? हेलो हेलो डॉक्टर जी, भाई साहब बीमारी क्या बताऊं? भाई साहब बीमारी क्या बताई जाए? बीमारी का नाम एनिमल फैटी पैथेरिसिस। हेलो डॉक्टर साहब, एनिमल फैटी पैथेरिसिस, जल्दी आइए। एनिमल फैटी पैथेरिसिस। अरे ये क्या कर रहे हैं? इसी तरह गीता प्रवचन देने की आदत है। इन्हीं तरह लेक्चर देने की प्रैक्टिस किया करते थे। रस्सी से खींचकर अंदर ले जाना चाहिए। जोर लगाकर हाइशा, दम लगाकर हाइशा, जोर लगाकर हाइशा, दम लगाकर हाइशा, वीर बहादुर हाइशा। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। जय हिंद। कैदी अंदर है? जी हाँ, हमें कंट्रोल रूम से खबर मिली थी कि वो पागल खाने से भाग आया है। जी नहीं, हाजिर है घर में। जय हिंद। क्या कजिन ब्रदर? यस माय कजिन सिस्टर। अब वो झूठा तक पास कहता है, संसार की सारी स्त्रियां अब मेरे लिए माँ बेटी की तरह हो गई है। तुम हेलो कुछ दिन में बात करते हो ना। तो इसमें बुरी बात क्या है? समझाइए ना सालिसा। उल्लू सीधा कर मुझे रास्ते से निकाल देना चाहती है। बात ये है वो अब धर्म की जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। और एक तेरा तो मैं भाड़ पकड़ने समझाइए साले साहब। बताओ फिर बुरा मारा अभी तक? अरे अब इतनी पैसे वाली हो गई तो मुझसे ऐसे बात करेगी? अरे कहाँ, वो कहता है कि सब बहू बेटी के नाम करके संन्यास ले लूंगा। क्यों टेंशन लेती है? अभी तो केस चल रहा है ना। अरे उसके लिए क्या है, तो कुछ भी कर सकता है, पागल बना बैठा है। तो तुम भी तो कुछ भी कर सकती है। मैं अभी भी उसकी धर्म पत्नी हूँ। तुम्हारे तो तुम्हारा धर्म कजिन ही है। वो आ रहे हैं। कौन? भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। थोड़ा ड्रिंक पार्टी का इंतजाम तो करिए। आइए आइए, तशरीफ लाइए, प्लीज इधर से आइए। ऐसी इमरजेंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तकलीफ भी आपसे माफी चाहती हूँ। वह बेहतर है, करीब नॉर्मल भलाई खाना कैसे हो सकता है? देखिए चलकर आए हैं, हाथ में पुष्प लिए हैं, शॉल ओढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपकी तबीयत कैसी है? ईश्वर की कृपा है, ठीक हूँ। हरिओम। एनिमल फैटी पैथेरिसिस। अजी ये सब तो डॉक्टर के सोच ले हैं। दरअसल मैं समाधि मग्न हो गया था। ट्रांसडेंटल, यू कैन अंडरस्टैंड। आपके दो संगीन मुकदमे चल रहे हैं, एक कत्ल और दूसरा पब्लिक न्यूसेंस। आपकी बीमारी का कारण ये तो नहीं है? बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ ऐसे ही हंस पड़ा था। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एक दिन समाधि में मेरी अर्जुन से मुलाकात हो गई। वे चाय पी रहे थे, द्रौपदी जी उनके साथ थी। वो मुझसे पूछने लगे, और भाई साहब क्या हालचाल है? आप मेडिकल चेकअप के लिए स्विट्जरलैंड कब जा रहे हैं? जाहिर है मुकदमे से छूटते ही चला जाऊंगा। अच्छा, आपको यकीन है आप मुकदमा जीत जाएंगे? क्वीन एलिजाबेथ ने भी मुझसे यही पूछा था।
मैंने जवाब दिया, सत्यमेव जयते। सवाल अरे आप रुकिए तो सही। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ खा पी कर जाइएगा, कॉकटेल का सारा इंतजाम है। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या मैं सो गया था? नहीं, दरअसल इस मुल्क की आवाजाही खराब हो चुकी है बहुत दिनों से। भाई चपरासी, तू तो एनर्जी खिलाई? हाँ हुजूर, बिल्कुल खिलाए, लेकिन उन्हें किधर पकाओ फिर आ जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, खिला देते हैं। जी जी तो डायरेक्टर साहब, कत्ल का इल्जाम आप पे झूठा लगाया गया है। जी बिल्कुल बेबुनियाद। तो आप इससे पहले क्या काम करते थे? ऑर्गेनाइजर थी। तो सरकार की जमीनें खरीद कर अपने नाम से बेचा करते थे हैं? जी हाँ, मगर मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छे ताल्लुक क्यों नहीं है? इसके बाद आपने फाइनेंस कंपनी खोली, उसका दिवाला निकल गया, उसके बाद आपने उससे मंदिर या मस्जिद बनवाया है? मिलॉर्ड, तो इसका कुछ खत्म हो चुका है। मेरी फाइनेंस कंपनी तो अब तक है। मंदिर के शिलान्यास के लिए कोई मंत्री मिला? एक मिनट बैठो। अच्छा, इसके बाद आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी हुई? जी हुजूर, प्रिंटिंग प्रेस खोली, उसमें जाली दस्तखत छपवा के अफसरों के जाली दस्तखत करवाए, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस भेजे। पकड़ी गई थी मैडम, पिछले हफ्ते जेल से छुट्टी है। जी पूछो किससे नहीं हुई? भैया कितने बड़े आदमी हैं, किस दिन टाइम निकाल के सच्ची बोल दी थी। हुजूर, बात ये ना, दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें रह गई है, पैसा और बदला। भाई सुना है कुछ खुदा बदा भी होता है। हुजूर, वो चुतिया के माफ कीजिएगा, मुंह से निकल गया। ऑर्डर यार, इस लौंडे का चेहरा किधर है? This is my right. अच्छा, और लेफ्ट की तरफ भी? चलो इधर आओ, इधर आओ। मैं कहती हूँ बाल कटवा लो, अपने बाल। मैं अपने बाल सर कटा सकता हूँ, मगर ये बाल नहीं। अच्छा जी। ओए, जी क्या? बदली से निकला है चांद। हैं? ये कहाँ से पहनते हैं? ओहो। अगर आप ना जाके देखें। हाँ। यही नौटंकी करके मुलजिमों को फंसाना। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर हूँ। इसकी बीवी को हासिल करो भाई। अब इसकी नजर बीवियों पर भी है। इसकी बीवी हाजिर हो। इस सारी हत्यारे हैं, चाट दो इस सबको फांसी पे। अरे आपको कुछ सेंटिमेंट ला के आना चाहिए था। हरिओम हरिओम। बड़ी उम्र है। Nonsense. भाई मैं बोलूं? ये आराम से सांस लीजिए। बताइए, इनको अगर फांसी हो गई तो आप विधवा नहीं हो जाएंगी? ऐसे हरामजादी से तो विधवा होना ही बेहतर है। हरिओम। ये हंसने का पॉइंट है। अरे ये क्या हंसेगा, इसकी नानी जो मर गई है। शाबाश बहन जी। हाँ, तो आपकी बीवी आपके खिलाफ क्यों है भाई? एक दिन मेरी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हो गई। वे स्वर्ग में 13 दिनों का उपवास व्रत लिए बैठे थे। मैंने पूछा वजह? दूल्हा भाई देसाई जी बोले, लोग प्रार्थना सभा में ना आकर अप्सराओं का नाच देखने जाते हैं। झूठा फुड़ी भी। हाँ, कहने दीजिए, फिर क्या हुआ? फिर लाइट ऑफ हो गई और इधर मेरी समाधि टूट गई। भाई साहब बंद कीजिए, इनकी बदमाशी नहीं जानते। अच्छी चीज चल रही थी भाई। हुजूर, अब्दुल्ला के कत्ल में इन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था, उसकी धार काफी तेज थी। इन्होंने अब्दुल्ला को कत्ल करने से पहले खूब शराब पिलाई, ओवर ईटिंग कराई, नींद की गोलियां खिलाई, उसे एयर कंडीशनर रूम में सुलाया। राम राम राम। मैं अपने एक बार ट्रेन में बैठा घर जा रहा था। एक पैसेंजर दूसरे को लगा मारने, औरतें गुहार मचाने लगी, बच्चे पैर करने लगे। फिर जब लूटपाट कर जब भाग गए, तब मैं सो के उठा। भाई कौन समझने में पड़ता, सोचिए मुझे जाना था अपना गांव, क्या लेना देना भाई। चुप है, बीच में फालतू में चपड़ करता है। तो अब्दुल्ला को खूब खिला पिला कर मारा आप लोगों ने। हुजूर, खामखा हम पर शक किया जा रहा है। मैं धर्म की जिंदगी जीने वाला एक शरीफ इंसान हूँ। भाई बताइए, कत्ल का इल्जाम आप पे क्यों लगाया गया? लोग जलते हैं मेरी दौलत से, मेरे रुपये से, मेरे नाम से। हर एक इलेक्शन में हर एक पार्टी हमसे खूब पैसा लेती है, सड़कों पे हमारी गाड़ियां चलाई जाती है और आखिर पर हम ही पर शक किया जाता है। आखिर इतना सब कमाया कहाँ से? जब एक जमाई लेता है तो दूसरे को जमाई आती है कि नहीं? ऑर्डर, यहाँ जमाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ है इसकी धर्मपत्नी?
हाजिर हो इनकी धर्म पत्नी। Hi, Daddy. भाई वो डैडी किसे कह रही है? मैं तो कुमारा हूँ। Don't be silly, Dad. यहाँ डैड वैड मदर फादर कुछ नहीं, ठीक है? बताओ अब्दुल्ला की हत्या, अब्दुल्ला से तुम्हारी मुलाकात हुई? कौन अब्दुल्ला? अरे तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला को देखा है? कौन अब्दुल्ला? आपको अपनी सफाई में क्या कहना है बयान दीजिए। बोलो सलीम। Girlfriends, बिस्तर, LSD, sex, drinks, cigarette, aunts, niece, Hare Krishna, Hare Rama. Freedom, fashion, modern, revolution, marijuana, LSD, hangover, Hare Krishna, Hare Rama. ऑर्डर भाई थोड़ा अपनी लैंग्वेज में बात करो ताकि सेंस ऑफ ह्यूमर तो बना रहे। अरे दूर इसमें क्या सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, ये तो कातिल है। सोचिए अब्दुल्ला में किस कदर का सेंस ऑफ ह्यूमर था। इस ब्रह्मांड में कभी कोई नहीं था। आपका ओरिजिनल नाम क्या है सर? मुझे ये बताओ। कमाल करते हैं। एक दिन मुझे ऐसा सर दर्द हुआ, ऐसा कि मैं अपना नाम खैर चपरासी पे डब्बा लाओ। जी जी। हाँ, ये देखिए इतनी सारी सिफारिशें। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, डायरेक्टर हेल्थ एंड हाइजीन, डायरेक्टर होमगार्ड, ये वही है हाँ। तो भाई इतनी सारी सिफारिशें लगाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? मुझे कुछ नहीं पता, सब उसी की माया है। दिख नहीं रहा। तो भाई आओ लॉटरी करेंगे। नहीं तुमने हाँ मेरी धर्मपत्नी हुजूर मेरी उनसे मुलाकात हेयर ड्रेसिंग सैलून में हुई थी। हुजूर मुझे सच्चाई बयां करने दीजिए। नहीं गुस्सा करना ठीक नहीं, हवा खराब हो जाएगा। सुनिए मैं सच्चाई बयां करना चाहती हूँ। यहाँ सच्चाई की कोई जरूरत नहीं है, वरना सारे के सारे सट्टे बाजार लेने शुरू हो जाएंगे, दुकानें खुल जाएंगी सच्चाई की। मैं सच बोल के रहूंगी। ये सब शादियां क्यों और कैसे हुई मैं बताती हूँ। हुजूर सच्चाई बयां करने दीजिए। हुजूर Nonsense. Really? ये क्या मजाक है? चलो इसको बाकी सब कुछ करें। मैं तो सिर्फ वकील मेरी सबसे क्या मतलब? मेरा खराबी वक्त नहीं है, मुझे जजमेंट देना है। बाहर आओ तुम्हें एक चमड़े का पट्टा बांधना है। क्या? चमड़े का पट्टा। मैं न्यायाधीश हूँ, फ्री एंड इंडिपेंडेंट। मुझे नहीं पता है, सरकार का हुक्म हुआ है, तुम्हें ये पहन के कमिटेड जज होना है। होना है? चलो। You will interpret law in the light of the ideology of the ruling party. तो सीधी जुबान में बात करो। Decide the case according to the wishes of the political party. समझ में आया या हिंदी में अनुवाद करूं? ये गलत है। मेंबर्स ऑफ ज्यूरी, हाजिरीन, मुझसे सहमत है, सारे सबूत है। ये लोग कत्ल है, इन लोगों ने कत्ल किया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे अब्दुल्ला कत्ल हुआ है, इन लोगों ने कत्ल किया है। ये लोग सारे के सारे मुल्जिम है। गलत, अब्दुल्ला जिंदा है। जिंदा है तो हाजिर करो। पहना ये पट्टा अभी दिखाई देगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला हम सबके बीच में है, वो जो करता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन उसका असर चारों ओर पड़ता है। भाई उसे भी किसी ने पैदा किया, उसकी हिफाजत हुई, उसने कपड़े सिलवाए, हमने अपना पेट भर लिया, मगर ये खाना कहाँ से आया? ये जाति किसकी है? नहीं एलएसडी तो नहीं। बंद करो बकवास और ये पट्टा बंधवाओ भाई। मेरे पास सारे सबूत हैं। मनुष्य अर्थ का दास है, आजादी का गुलाम है, मगर ये अर्थ किसका दास है? ये जाति किसकी है? हमने अपना पेट भर लिया है। सुनो, अब्दुल्ला की हत्या मैंने की। चलो करो मेरा ट्रायल। मैं हूँ वल्द साकी, खुदा को नाज़े ताज़े समझकर ये कबूल करता हूँ, मैंने अब्दुल्ला का कत्ल किया है। सुनो किस्सा उस जानवर का। क्या नाम था उसका? डायनासोर। हाँ,
वो डायनासोर अपनी आजादी, अपनी ताकत के लिए अपना शरीर बढ़ाता गया। कहाँ मुंह, कहाँ पूंछ, बढ़ते बढ़ते वो डायनासोर इतना बड़ा हो गया कि चलने फिरने से मजबूर हो गया। आज वही डायनासोर की हड्डियां इस जमीन में से पेट्रोलियम बनती निकलती है बाहर। दिस इज नेचर। चलो बंद करो बकवास। चलो कमिटेड जज, शपथ लो। I swear that I will not bear true faith and allegiance to the Constitution and the law. चलो फैसला दो। अब्दुल्ला हाजिर है। देखिए उसका पहनावा, उसकी बातें, उसकी खाना में, मगर वो आया कहाँ से? लाहौर से या दिल्ली से, इंग्लैंड से या कलकत्ता से? ये हमारे आजादी की संतान है या पीएल पार्टी की? हाज़रीन, गरीब प्रजातंत्र में चाहे वो कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट, लोग अक्सर प्यार, मोहब्बत, व्यवहार के बारे में बेपरवाह हो जाते हैं। प्यार और मोहब्बत के बिना जिंदगी जीने की आदत डाल लेते हैं। इसी वजह से अब्दुल्ला दीवाना हुआ। पता नहीं इतनी शादियों से उसका मन क्यों नहीं उठता। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो मुझे सादे कपड़े पहने दिखा। फिर रंग बिरंगे कपड़े पहने दिखा। मुझे ताज्जुब उस दिन हुआ जिस दिन मैंने उसे 7 रंगों वाली पैंट पहने देखा। वो पता नहीं कौन सी भाषा में बड़बड़ा रहा था। मैंने उसे डांटा, ऐसे खुलेआम सड़क पे पेशाब करता है? वो पागल हंस पड़ा। मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी के बारे में नाम शनाब कुछ दिनों पहले वो मुझे एक नई जगह पर मिला। उसके सारे शरीर पर दाग थे। उसको कीड़े मकोड़े नहीं थे। वो एक पागल कुत्ते का मुंह पकड़ के उसे छू रहा था। मैंने पूछा क्यों? क्यों? आखिर क्यों? जब चारों ओर इतना अंधेरा है, फिर ये बदतमीज सूरज इतनी रोशनी क्यों फेंकता है? वो मर गया, वो जिंदा है, उसने आत्महत्या की, वो मौजूद है, उसने गरीबी दूर की, पर वो बेहद करीब है। वो प्रजातंत्र में तो है और बेहद गुलाम है, बहुत गुलाम है। वो कपड़ों से लगा है और बेहद नंगा है। वो खाता पीता है, भूखा प्यासा है। वो जो नहीं है वही दिखता है, वो जो नहीं है वो नहीं दिखता।
सुरंगों में और अंधेरे में और Himanshu, who was the Sarkari Vakil, Piyush, who was Purush. Then we have Ritu, who was doing backstage handling as well as she did 2 characters. Then we have Devika, who was the Stree. We have Icha, who's the director. We have, of course, Abhijit, who was the judge. Priyanka, who was the main chowkidar, and of course Abdullah. And we have Anupama, who is the police. Then we have, of course, Anju. She did backstage help, and she was the one who helped us a lot. We have Shivangi, who is actually responsible for getting this all together. And we have Priyanka again, who was the Vakil, and Akshay, who helped us film today and helped us with the sound. And we have, of course, Akshay, who was the Yuva. And we have can I have Suraj on stage, please? Chetna, can I have you also? And these are people who helped us with the lights. Arjun. It's because of you that this has happened. Aye, please. Yes, sir. Please, sir. Please, do you want to hear? Very professional presentation, very professional, and I was amazed that in 15-16 days, how did they remember all the dialogues? I was having my apprehensions, but you came up, you did very well. And we all want to thank Vanya ma'am. Thank you. That's all for the drama.